Mute yourself and ask your. Okay, I think it is raised by mistake. Okay, I'll just see if I have any question. Okay, so अगर हमें previous कोई question नहीं है, so I will start with today's topic, which is energy, water, fiber. हमने macronutrients, micronutrients के बारे में study किया था, and that time also जब हम first class में we were discussing. Sugandha, please check the settings at your end. So जब हमने first class में discuss किया था, तो we discussed about fiber, but that does not fall in the category of macro or micro. Okay, because उसमें nutrient नहीं होता है, but it is very important. Water also, fiber also. So we are going to take that topic today. Yes, Nayana, please ask your question. Nayana, please unmute yourself and ask your question. मैम, अगर B12 ज्यादा हो जाए तो उसका साइड इफेक्ट क्या है? B12 अगर ज्यादा हो जाए तो नर्वस इश्यूज होते हैं, नर्व सेंसेशंस में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज B12 इज मोस्टली रिलेटेड टू योर नर्व इश्यूज. ओके ओके ओके, थैंक यू मैम. तो इट इज नॉट अगर B12 ज्यादा हो गया है इन अ पर्टिकुलर डे, इट इज गोइंग टू डिफरेंस. Please mute yourself, whosoever is unmuted. But अगर constantly B12 का intake ज्यादा है तो इशू, किसी भी न्यूट्रिएंट का अगर constantly intake ज्यादा है तो इश्यूज हो सकते हैं. Okay, let's start with today's topic, which is energy. So we've been talking about macros हमें energy देते हैं, carbohydrate, protein, fats हमें energy देते हैं. Energy is the simplest form में ability or the power to do work. Anything, even we are blinking eyes, हम energy utilize कर रहे हैं. When we are eating food, food को digest करने के लिए, absorb करने के लिए, food को transport करने के लिए, we need energy. So for every single thing that our body is doing internally and externally, हमें energy लगती है. एंड एनर्जी को हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ किलो कैलोरीज. ओके, जैसे वेट अगर हम लेते हैं तो किलोग्राम में लेते हैं, दूध या वाटर देते हैं तो ml में लेते हैं, इसलिए एनर्जी का यूनिट है किलो कैलोरी. किलो कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर थ्रू 1 degree Celsius. किलो कैलोरी को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? 1 kg वाटर का जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस में से इंक्रीज होता है, उसे इंक्रीज करने के लिए जितनी एनर्जी या हीट लगती है उसे हम बोलते हैं किलो कैलोरी. सो इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में किलो कैलोरीज नहीं यूज होती हैं, जूल्स यूज होते हैं. सो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.184 किलो जूल्स. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. कार्बोहाइड्रेट, 1 gram of carbohydrate gives us 4 kilocalories, 1 gram of protein gives us 4 kilocalories, and 1 gram of fat gives us 4 kilocalories. So this is important. ये हम calculation use भी करेंगे हमारी आगे डाइट. frequently हमें ये nothing as such great ही याद नहीं रह सकता. So simple thing है, we need this for our calculations. ओके, द अदर टर्म जो हमारी एनर्जी के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है वो है बेसल मेटाबॉलिक रेट. नाउ व्हेन somebody is at the resting state, when somebody is sleeping or somebody is just sitting and doing nothing, पूरे 24 hours में भी तब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है for our internal organs vital functions to carry out. लिवर, हार्ट, किडनी, लंग्स, ब्रेन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेसेस 24 आवर्स हमारी बॉडी में इंटरनली चलते रहते हैं.
इन सब प्रोसेसेस के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है. सो द मिनिमम एनर्जी दैट वी नीड फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन, सो दैट जो वाइटल फंक्शंस है हमारी बॉडी की वो कॉन्स्टेंटली वर्क करती रहे, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट. A basal metabolic rate is very similar to resting metabolic rate or resting energy expenditure. And it usually varies, average ये 1400 kilocalories होता है for females and around 1600 kilocalories for males. BMR और REE, BMR और basal metabolic rate और resting energy expenditure में ज़्यादा difference नहीं होता है, they are almost same. Now the basal metabolic rate of a person is required, and body को अलग जब हम किसी की बात कर रहे हैं कि X individual needs 2000 calorie diet or a Y individual needs 1500 calorie diet, how do we understand कि कितनी एनर्जी या कितनी कैलोरीज चाहिए होती है? So basically the body needs calories in 3 forms, or probably for 3 major activities. One is basal metabolism, the thing that we discussed for the basic activities of the body, which are very, very important, and they are continuously happening 24 hours in a day. So basal metabolism, like digestion, secretion, synthesis of certain non-essential fatty acids, amino acids, secreting certain enzymes, hormones, maintaining the body temperature, heartbeats, every single thing that our body is doing inside, we need the energy for that. And total energy में से around 45 to 70% energy हमें basal metabolic activities के लिए चाहिए होती है. Second activity for which we need energy is metabolic response to food. So now that we are eating food, the food needs little energy so that unka digestion shuru ho. Food gives us energy at the end, but first of all, to break down the food, to digest the food, energy is required. So 10% of energy is required for the metabolization of the food. Third thing that for which we need energy is physical activity. कुछ भी हम एक्टिविटी करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए. 2 टाइप्स की एक्टिविटीज हम डेली करते हैं, ऑब्लिगेटरी एक्टिविटी, डिस्क्रिशनरी एक्टिविटी. Obligatory activity is like the activities that we have to do that. Okay, like going to school, going to office, doing household chores, जो हमारी day to day की activities है जिनकी if we do not do, our life is going to get impacted. These are obligatory activities, उनके लिए हमें energy चाहिए. And then we need energy for discretionary activities, which means the activities which we can avoid, which we can skip also. उसमें इतना ज़्यादा difference नहीं आएगा. So these are the factors on which we decide कि हमें कितनी calories की diet चाहिए. Obviously we calculate BMR, we calculate how much energy kilocalorie diet we require, and we will do that in the tomorrow's class. Now understanding BMR कुछ factors पे dependent है. First is the size of the body. अगर किसी individual की body size ज़्यादा होगा तो BMR भी ज्यादा होगा. अगर किसी की इंडिविजुअल का साइज कम होगा तो BMR भी कम होगा. So BMR is closely related to body surface area, as basal heat production is directly proportional to the surface area. Second factor जिस पे basal metabolic rate depend करता है वो है age. For highest BMR is seen in the first 2 years of life. Just a second. So as the age increases, the BMR decreases. Old age में सबसे कम BMR होता है. Then depending upon whether an individual is a male or a female, BMR depend करता है. Males usually have higher BMR as compared to females. Now
this really depends upon the body composition. ठीक है, what we have is body composition. Body composition में there are 4 factors that are there: fat, muscle, water, bone mass. तो ये फैक्टर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं मेल्स एंड फीमेल्स में. Okay, what happens in males and females is the fat percentage is less in males and more in females. This is a natural thing. Obviously we need to work, हम कम कर सकते हैं, but naturally males में percentage of fat is more and females में males में percentage of fat is less, females में percentage of fat is more. Then is muscle mass. Muscle mass males में ज्यादा होता है and females में कम होता है. Okay, since there are more muscles, they require more water to be maintained. So water mass भी males में ज्यादा होता है, females में कम होता है. So this is the body composition. Now with this body composition, as the muscles are more, the BMR would be also more in males. Muscle and BMR, they are directly proportional to each other. अगर मसल ज्यादा है बीएमआर ज्यादा है. अगर फीमेल एक अपनी बॉडी में मसल ज्यादा डेवलप कर लेती है उनका बीएमआर भी ज्यादा हो जाएगा. सो यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट वेट लॉस, सो आपने बहुत बार सुना होगा कि वेट लॉस में हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है, एक्सरसाइज करने को कहा जाता है सो दैट द मसल गेन टेक्स प्लेस. सो दिस इज द मेन रीजन, बिकॉज अगर हम एक्सरसाइज करेंगे एंड हमारी डाइट में मसल्स की डेवलपमेंट के लिए गुड प्रोटीन्स होंगे, सो वी विल गेन मसल्स एंड एज वी गेन मसल्स हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा. एंड एज द बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीजेस, व्हिच मीन्स हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो मोर एफिशिएंटली वर्क कर रही है. दे आर रिक्वायरिंग मोर कैलोरीज टू फंक्शन. तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग 2000 कैलोरी डाइट, तो आपकी अगर बीएमआर ज्यादा है तो 1500 कैलोरीज तो आपका बीएमआर में ही जा रहा है. रेस्ट ऑफ द कैलोरीज विल बी टेकन बाय द अदर फंक्शंस, सो यू विल बी लूजिंग वेट इन दैट केस. ओके, सो दिस इज हाउ depending upon the male or a female, the BMR varies, or probably the composition of the body, the BMR varies. When a person has fever, BMR increase हो जाता है. Fear, anxiety, tension के issues होते हैं तो भी BMR increase होता है. Under nutrition या starvation करते हैं तो BMR decrease होता है by 10 to 20%. So you know that is why it is said that we should never be skipping meals if we want to lose weight. यहाँ में बहुत लो कैलोरी डाइट्स नहीं लेनी चाहिए इफ यू वांट टू लूज वेट, बिकॉज अंडर न्यूट्रिशन एंड कांस्टेंट स्टार्वेशन अगर आपकी डाइट में होगी, यू विल ड्रॉप डाउन योर बीएमआर. देन हार्मोनल बैलेंस भी बीएमआर को इन्फ्लुएंस करता है. अगर फॉर एग्जांपल अगर हम थायराइड का एग्जांपल लेते हैं, थायराइड में अगर थायराइड हार्मोन कम रिलीज होता है, द कंडीशन इज हाइपोथायराइडिज्म. वी decrease the BMR in that case. अगर hyperthyroidism होता है, थायराइड की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, we increase the BMR in that case. So additional energy is required for growth as the person or the child grows. Pregnancy में because the fetus is growing, and lactation में because the mother has to produce milk to feed. So in cases में energy requirements increase हो जाती है. Any questions related to the topic energy? Yes, fat is 9 kilocalorie. Yes, Anika, please ask your question. मैम ये बेसल हीट प्रोडक्शन क्या होता है मैम? There is no basal heat production. There is basal metabolic rate that we are talking about. मैम जो अभी आपने लास्ट पढ़ाया ना उसी में था ये. Just a second. बेसल हीट प्रोडक्शन. Where it is written, because अगर मुझे reference मिलेगा तो मैं बता दूंगी. In which topic it was under that? Where have you read that, Anika? Because I am the not. I am, Anika, please unmute yourself because I am not going word by word in the document.
Just a second. In body size, you have read that. Just a second. If I get the reference, I will be able to. It is body surface area as basal heat production is directly proportional to the surface area. Basal heat production in this context is same as basal metabolic rate, because जब आपके सेल्स फंक्शन कर रहे हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं, वो जो हमने बेसल मेटाबॉलिक रेट की डेफिनेशन में पढ़ा था, द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 kg वाटर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज होता है टेम्परेचर, सो the BMR is that, the calories is that. So जैसे ही basal area, आपका surface area body का increase होगा, cells increase होंगे, उसमें obviously digestion के time या कोई भी activity अगर होती है body में heat produce होती है. When we do any activity, the body produces heat. For example, if you're shivering, ठंड है बहुत, and you do exercise, you start removing your jackets because body में heat produce हो रही है. So अगर हमारी बॉडी में सेल कॉम्पोजिशन या सेल मास ज्यादा है, मोर एक्टिविटी इज डन, सो मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज रेफरिंग टू दिस कॉन्टेक्स्ट. बेसल heat production is referring to basal metabolic rate only here. Any more questions? Hema, please ask your question. Anika, if you have any other question, please raise your hand again. हेलो मैम. Yes, Hema. मैम, बॉडी कॉम्पोजिशन में आपने जो बोन मास बताया है वो एक बार फिर से समझा दीजिए. Bone mass के लिए currently I haven't told anything. I have mainly focused on fat, muscles and water. Bone mass का BMR से ज्यादा linkage नहीं होता है, so I have not touched upon bone mass in this. You Okay, want okay. me to repeat this? Fat, muscle and water. No ma'am, it's clear. So bone Okay. mass is irrespective of BMI. I have just told you कि body के composition में ये factors होते हैं, but BMR has the role in the first 3 ones only. Okay. Yes, Prabir, please ask your question. हाँ मैडम, जी. जैसे लास्ट वीक में जो क्वेश्चन आया था उसमें 8 नंबर क्वेश्चन में था एक्टिविटीज फॉर व्हिच एनर्जी इज needed. Okay. Number 1 basal metabolism, number 2 metabolic response for food, number 3 physical activity. इसका मतलब आपने जो अभी तक जो समझा और मैंने जो समझा, इसका मतलब all of the above. Yes, होगा ना? all of them needs energy. Yes. Okay madam, okay. यही क्वेश्चन. All right. iPhone, could you rename yourself? iPhone, please unmute yourself. Okay, Deepika, please unmute yourself. गुड इवनिंग मैम. Good evening. मैम, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बताया कि जब डाइट किसी को दी जाती है तो हाई प्रोटीन डाइट का आपने उससे रिलेशन जो बताया था वो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए BMR के साथ. So I specifically talked about an example जहां हमें अगर किसी को weight loss डाइट देनी है, ठीक है, हम weight loss डाइट जब देते हैं हम एक टारगेट रखते हैं कि हमें उनको हाई प्रोटीन डाइट देनी है, बिकॉज इसका एक सिग्निफिकेंस ये होता है कि वी नीड दैट पर्सन टू when we are talking on a longer term, कि हम चाहते हैं कि वो पर्सन का बॉडी कॉम्पोजिशन में फैट मास डिक्रीज हो, but at the same time the person increases the muscle mass. And to increase the muscle mass along with exercise, अगर हम सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे बट हमारी डाइट में प्रोटीन्स नहीं होंगे तो मसल गेन नहीं होगा, बिकॉज मसल्स में से जो अमाइनो एसिड्स आते हैं उनकी वजह से ही मसल गेन हो पाता है. सो एक्सरसाइज एंड गुड प्रोटीन डाइट दे गो हैंड इन हैंड जब हमें मसल डेवलपमेंट करनी होती है. एंड जब हम मसल डेवलपमेंट करते हैं, when our muscle mass increases, then the BMR increases, and once the BMR increases, then we lose weight. Clear now? Yes ma'am. Thank you ma'am. Greh, please ask your question. Hello ma'am. Hello. Ma'am, actually, will you please tell me that what is the difference between the K calorie, I mean KCAL and only CL? Several times we have seen it is same. like हम शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी कैलोरीज बोल देते हैं, किलो कैलोरी इज द यूनिट, सो सेम है. So kilo, I mean not 1000 calories, na? No, nothing like जो हम मीटर किलोमीटर में कन्वर्जन करते हैं वैसा कुछ भी नहीं है.
कभी कभी हम बोल देते हैं दिस फूड इज गिविंग अस दिस कैलोरीज, बट दैट कैलोरी मीन्स किलो कैलोरी ओनली. Okay. And my second question from the previous class, actually, I haven't attended. I have seen. Yeah, So please ask. the thing is that you told us regarding the adding of the salt in the oil. It should not be there. It should not be there. So what happens if when we are cooking the food, then we are adding the oil and we are also adding the salt? That topic was related to frying. ठीक है, जब हम डीप Correct. फ्राई करते हैं किसी फूड को, जी. तो सर्टेन आजकल फ्रोजन फूड्स आते हैं या कोई भी फूड है, ऊपर एप्लीकेशन ऑफ सॉल्ट नहीं होना चाहिए. ऑब्वियसली एक कुक्ड फूड के अंदर तो सॉल्ट होगा ही, तो जी. बट द टॉप लेयर शुड नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ऑयल. दैट डिटीरियोरेट्स द क्वालिटी ऑफ ऑयल. जैसे आप अपन ने फ्राइड किया किसी को, फ्रोजन जो भी है अपने पास में, तो उसको अपन ने फ्राइड किया, डीप फ्राइड, तो उसके ऊपर आप कह रहे हैं सॉल्ट नहीं ऐड करना है, ऐसा? नो 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 नो, नॉट दैट. सपोज आप फ्रेंच फ्राइज लेकर आए, ठीक जी. है, आप फ्रेंच फ्राइज कुक्ड कहीं से लेकर आए, फ्रेंच फ्राइज में कुक्ड है, फ्राई किए हुए हैं, उसमें सॉल्ट है, बट नाउ वो ठंडे हो गए हैं एंड यू वांट टू refry them, so that french fries will have salt on it. तो वो आप सॉल्ट वाले Okay. फ्रेंच फ्राइज को जब आप ऑयल में डालोगे तो सॉल्ट का डायरेक्ट कांटेक्ट आएगा ऑयल के साथ. दैट इज नॉट गुड. बट अगर आप Okay. एक फ्रोजन फूड ले रहे हो, उसमें ऊपर सॉल्ट की लेयर नहीं है, देयर इज नो सॉल्ट पार्टिकल ऑन दैट फ्रोजन फूड. इनसाइड ऑब्वियसली जब हम आलू टिक्की या समोसा या कोई भी चीज फ्राई कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसके अंदर मसाले में सॉल्ट है, दैट इज ओके, बट टॉप में अगर सॉल्ट है वो नहीं होना चाहिए. तो मैम ऐसे तो बहुत सारे फ्रोजन आते हैं जिनके अंदर सब लगा हुआ रहता है, बहुत सारे ऐसे फ्रोजन आते हैं, तो वो So we that is should wrong, not ना? take them na, as such these Yeah. are not healthy foodstuffs. Okay, right. Okay. Thank you. Yes, Vishal, please ask your question. मैम थोड़ा सा टॉपिक से अलग क्वेश्चन था. मैम ये पूछना चाह रहा था मैं, जैसे किसी को वेट गेन करना है अपना, तो मैम आरडीए के द्वारा जो कैलोरीज बताई गई हैं, तो मतलब मोस्टली कैलोरीज होती हैं वो हमको कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए जी एंड रिमेनिंग फ्रॉम प्रोटीन्स एंड फैट से लेनी चाहिए. जी. मैम जैसे कि किसी की कैलोरी रिक्वायरमेंट 23 या 2400 है, एंड अगर वो कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के, मतलब कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट उसकी 250 ग्राम्स है, तो मैम अगर वो कार्बोहाइड्रेट कम ले रहा है या वो 180 से 200 के बीच में ले रहा है एंड द रिमेनिंग कैलोरीज हैं वो फैट से ले रहा है, तो मैम जो एनर्जी प्रोडक्शन है, जो हमको एनर्जी चाहिए रेगुलर वर्कआउट में या डेली एक्टिविटी में या जिम में वर्कआउट में, तो मैम वो कार्बोहाइड्रेट से खत्म होके बॉडी फैट से लेना स्टार्ट कर देगी या कुछ अलग होगा? हाँ, ये मैकेनिज्म डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. विशाल, मैं इसका जी. आंसर अभी नहीं दूंगी. वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन. उस टाइम पे आई विल बी Okay, ma'am. एक्सप्लेनिंग यू कैसे हमारी बॉडी कार्ब्स यूटिलाइज करती है, कब फैट्स यूटिलाइज करती है और कब प्रोटीन्स यूटिलाइज करती है. सो जस्ट वेट फॉर 2 to 3 क्लासेस. Okay, thank you. यस हेमा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. मैम जैसे आपने बताया कि वेट लॉस के लिए आप लोग प्रोटीन डाइट देते हो, तो अगर किसी को प्रोटीन इनटेक मना हो तब वेट लॉस के लिए फिर आप क्या उसको सजेस्ट करोगे? प्रोटीन इंटेक उनको सर्टेन कंडीशंस में रिस्ट्रिक्ट किया जाता है. अगर किसी को किडनी इशू है या किसी को यूरिक एसिड इश्यूज है, सो वी विल डिस्कस दैट. ऑब्वियसली पहले हम उनके इश्यूज को ठीक करेंगे, फिर वेट लॉस पे फोकस करेंगे. ओके, थैंक यू मैम. मोस्ट वेलकम. यस सोनाली, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. अगर मुझे BMR काउंट करना है घर पे, तो मैं वो कैसे कर सकती हूँ ना, कैसे We चेक will कर learn सकती that probably in the tomorrow's class. हूँ? ओके, वन मोर क्वेश्चन, लाइक अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो उसका BMR हम स्टार्टिंग फेज में चेक करते हैं या फिर कुछ डाइट देने के बाद, कुछ Starting मंथ phase बाद? में, starting Starting first phase में. time में. Yes, yes. ओके. Yes, Prabir, please ask your question. हाँ मैडम, आपने जब जैसे बताया कोई वेट लॉस करना चाहते हैं तो उनको प्रोटीन इंटेक ज्यादा करना पड़ेगा. तो मान लीजिए वो उसी हिसाब से प्रोटीन इंटेक ज्यादा कर लिया, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उनका वेट लॉस होगा क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता है कि हमने प्रोटीन इंटेक बढ़ा लिया पर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है. फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से ही हम प्रोटीन बढ़ाएंगे.
वी विल टॉक अबाउट दिस कि कितना प्रोटीन देना है. हम ज्यादा प्रोटीन देंगे उससे वेट लॉस होगा ऐसा नहीं है. देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप कि हाई प्रोटीन इंटेक विल गिव यू वेट लॉस. देयर इज अ रिलेशनशिप. बैलेंस डाइट में अगर प्रोटीन इंटेक और एक्सरसाइज कंपोनेंट्स हैं, बैलेंस डाइट में वेट लॉस के लिए हमें 10 से 15 चीजों का ध्यान रखना होता है. उसमें से 2 चीजों की अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं बिकॉज वो BMR से रिलेटेड था. देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, सो वी विल टॉक अबाउट दिस. I would like to move forward. Yes, Kayan, please ask your question and then we move forward with our topic. I want to ask, someone has a uric acid and he has come for me a diet. What will I do? I will do matlab something like, first of all, I have to convince her कि पहले आपकी मैं यूरिक एसिड ठीक करूंगी तब मैं आपको वेट लॉस आपका होएगा, ऐसे श्योर करना पड़ेगा उसको, या वो कहेगा मैं यूरिक एसिड की टैबलेट्स ले रहा हूँ ऑलरेडी, आप मेरे को वेट लॉस की डाइट दो बस. ओके, तो यस, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें वेट लॉस करना होता है, साथ में ही दूसरे इश्यूज होते हैं. सो व्हेन वी हैव इश्यूज लाइक कि यूरिक एसिड वाला पेशेंट आया, बिकॉज यूरिक एसिड में ही थोड़े से हमें कभी कभी प्रोटीन्स रिस्ट्रिक्ट करने होते हैं. अदरवाइज बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स तो हमारे पास नहीं आएंगे. दे आर मोस्टली गोइंग टू द हॉस्पिटल एंड टेकिंग केयर ऑफ देम. सो यूरिक एसिड में क्या होता है, यस, हम कुछ हद तक लो कैलोरी डाइट्स बनाते हैं एंड देन वी टारगेट वेट लॉस, बिकॉज यूरिक एसिड ऐसे ही रिवर्स नहीं हो जाता है. हमें कॉन्स्टेंटली 2 to 3 months वर्क करना होता है एंड देन इट गेट्स लिटिल लोअर एंड साइमल्टेनियसली वेट लॉस भी होता है. सो व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट वेट लॉस डाइट एंड यूरिक एसिड, व्हेन वी कवर द टॉपिक, वी विल कवर ऑल दीज थिंग्स कि कैसे हमें मल्टीपल कंडीशन पेशेंट्स को हैंडल करना है, जहाँ एक कंडीशन में हमें प्रोटीन ज्यादा लेने चाहिए बट साइमल्टेनियसली दूसरी कंडीशन हमें रिस्ट्रिक्ट करती है प्रोटीन. सो वी विल टॉक अबाउट दिस व्हेन वी विल कवर द टॉपिक्स. Okay, so let's move ahead with fiber. Now, when we are considering the things that we should be there in the diet, हमने macros and micros consider कर लिए. Fiber is also very important. इसकी कोई nutritional value नहीं होती है, but fiber grams में हमें चाहिए होता है. Secondly, fiber is very helpful. Now fibers are usually present in plant-based foods, cereals, grains, vegetables, fruits, nuts, seeds. ये basically food items है या components है जो हमें fiber देते हैं. Now there are 2 types of fibers, soluble fiber and insoluble fiber. Soluble fiber जो होते हैं वो ज्यादा ferment होते हैं, insoluble fiber less ferment होते हैं. What do we mean by fermentation? Let's understand this thing. The digestion of fiber. Fiber does not get digested in the mouth. Fiber goes into the small intestine. Obviously fiber food में mix होता है. हमारे रोटी अगर हम ले रहे हैं उसमें मिक्स्ड है, या एप्पल लिया है उसमें नेचुरल फाइबर है, हमने कुछ उसमें ऐड नहीं किया. ठीक है. सो स्टमक में डाइजेशन होता है. दिस फाइबर इज देयर इन द स्टमक. इट इज नॉट गेटिंग डाइजेस्टेड हेयर. सॉल्युबल फाइबर यहाँ पे जो पार्शियल फूड का डाइजेशन होगा मिक्स हो जाएगा फूड के साथ स्टमक में प्रॉपर्ली, सारे के सारे फूड के साथ. Then it moves into the small intestine. Okay. Now, when the food moves in the small intestine, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये hair-like structures हैं जिन्हें villi बोला जाता है. जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फाइबर जो है शुगर, फैट, कोलेस्ट्रॉल को बाइंड कर लेता है और ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिससे फाइबर शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैट को बॉडी में इजीली रिलीज नहीं होने देता. ये ट्रैप कर लेता है और इनको कुछ अमाउंट को बॉडी से डिस्कार्ड भी कर देता है. ओके. देन इनसॉल्युबल फाइबर इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड इनसॉल्युबल फाइबर जो होता है वो गट में, लार्ज इंटेस्टाइन में डायरेक्टली जाता है एंड ये स्टूल फॉर्मेशन की रेगुलरिटी को मेंटेन करता है. Now there are 2 types of fiber as we are talking about soluble and insoluble fiber. Soluble fiber basically oats, then it is present in cereals, it is present in psyllium husk, flax seeds, barley, इन सब में present होता है. और insoluble fiber skins में present होता है, skins of fruits and vegetables. It is somewhat present in flax seeds also. It is present in wheat and wheat products majorly and some grains.
ओके जब सो बेसिकली फर्मेंटेशन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। फाइबर खाने के साथ क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, डाइजेस्ट हो गए, दे आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। फाइबर रह जाता है, तो फाइबर विल गो ऑन इन दिस लार्ज इंटेस्टाइन। दिस आउटर वन रेडिश कलर इज द लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे जो इसकी आउटर वॉल्स है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, फाइबर को लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करती है और वो स्टूल्स बना देती है, एंड दैट इज हाउ इट हेल्प्स इन कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो। फाइबर जैसे जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है स्टमक में, सो ये एक फीलिंग देता है दैट द सटाइटी इज हियर, पेट भर गया है। सो इट इज ऑल्सो सजेस्टेड इन वेट लॉस प्लान्स since it binds sugar, since it binds cholesterol and fat. It is very good for heart issues, constipation issues, taking care of diabetes individuals. All these diets we take care of fiber. Okay, then these are the food sources. This is about water soluble fermentation. So जो fermentation large intestine में होती है वो water insoluble की less होती है and soluble की ज्यादा होती है. I have already told you the sources of both them. Physical chemical properties of dietary fiber. So जितना ज्यादा एक fine particle होगा उतना उसमें fiber कम होगा, जितना एक coarser particle होगा उसमें fiber content ज्यादा रहेगा. So like आटा versus मैदा. So आटा को हम आटे को और व्हीट को और प्रोसेस करते रहते हैं, प्रोसेस करते रहते हैं, एकदम फाइन पाउडर बना देते हैं तो मैदा बनता है. तो मैदा डज नॉट हैव फाइबर बट इट इज मेड फ्रॉम व्हीट ओनली, whereas wheat has fiber because it is coarser. Okay, so विस्कोसिटी एंड सॉल्युबिलिटी भी डिपेंड करती है पार्टिकल साइज पे. अगर पार्टिकल साइज कोर्सर है विस्कोसिटी एंड सॉल्युबिलिटी विल बी मोर, एंड सरफेस एरिया ज्यादा है फर्मेंटेबिलिटी विल बी मोर. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी सरफेस एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी तो फाइबर के बेनिफिट्स और फर्मेंटेबिलिटी ज्यादा होगी. ओके, I will come to your question. Let me just finish with the fiber topic. Fermentation of fiber colon में होता है, which is the large intestine का colon, and it is very very helpful because हमारा जो large intestine है वहाँ पे good bacteria are present, और ये जो good bacteria है ये हमारे लिए बहुत beneficial है. ये हमें बहुत सारी diseases, infections से बचाते हैं, ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हाई रखते हैं. सो इट इज वेरी बेनिफिशियल. सो जहां फर्मेंटेशन होगी वहां स्टार्च कंप्लीटली डिग्रेडेड होगा, एंड आफ्टर फीडिंग द बैक्टीरिया जो रफेज बचता है, जो वेस्ट बचता है, वो स्टूल की तरह एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से. सो फर्मेंटेशन डिपेंड करती है कितना सॉल्यूबल है एक फाइबर और वो मूव कर रहा है कि नहीं. बिकॉज यू नो व्हेन वी सी द large intestine, it is like this, it is like this. यहाँ से small intestine से ये शुरू होता है, फिर यहाँ पे movement होती है, यहाँ होती है, then यहाँ होती है, और फिर यहाँ पे rectum में evacuation होती है. So the movement has to be there. अगर ये यहाँ पे first जाएगा और movement नहीं होगी then it is of no use. Okay, so the motility has to be there. Fermentability जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा होता है. So जैसे इसबगोल, ग्वार गम, resistant starches की fermentability is 100%. Okay. Absorption and metabolization. Now जब large intestine में fermentation हो रही है, बैक्टीरियाज उसे अपने फूड की तरह से यूटिलाइज कर लेते हैं. Obviously if the bacteria are alive they are going to be helpful. Okay, and वो अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं एक पार्ट फाइबर का. दूसरा पार्ट स्टूल्स में एलिमिनेट हो जाता है, स्टूल फॉर्मेशन में हेल्प करता है. शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स भी प्रोड्यूस होते हैं, गैसेस भी प्रोड्यूस होती है जब फर्मेंटेशन होती है. ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो है बाइकार्बोनेट्स प्रोड्यूस करते हैं और पीएच इंक्रीज करते हैं, पीएच को बैलेंस करते हैं. अगर बहुत एसिडिक पीएच है तो अल्कलाइन कर देते हैं. शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बैक्टीरिया की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं और ये ऑक्सीडाइज होते हैं लिवर में. गैसेस प्रोड्यूस होती है एंड गैसेस आर आल्सो टेकन अप बाय द गुड बैक्टीरिया. कुछ गैसेस हम ब्रीदिंग में इवैक्यूएट करते हैं जैसे कि मीथेन और हाइड्रोजन,
और कुछ गैसेस जो फिर यूज नहीं हो पाती उनको एक्सक्रीट करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टूल. सो गैस प्रोडक्शन, शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोडक्शन इज वेरी वेरी important part. So this is all about what we have just talked about. Benefits of having fiber in the diet. Fiber हमें satiety देता है. Fiber feeds good bacteria, as we just spoke about. Fiber help in preventing leaky gut and constipation. Now what happens is constipation, okay, I'll just tell you, अगर fiber का roughage ही नहीं होगा तो स्टूल कैसे बनेंगे, ठीक है. सो फाइबर इज हेल्पफुल इन कॉन्स्टिपेशन. एंड लीकी गट क्या होता है, एज आई टोल्ड यू, स्टमक से फूड आया, स्टमक से फूड आके स्मॉल इंटेस्टाइन में गया एंड इट गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. नाउ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन हैज स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिन्हें हम विलाई बोलते हैं. जो स्टमक से न्यूट्रिएंट्स आए वो यहाँ पे कंप्लीट उनका डाइजेशन होता है और कंप्लीट डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स दे आर थ्रोन आउट इन द ब्लड सिस्टम, ठीक है, ब्लड में विलाई के थ्रू बाहर जाते हैं. नाउ व्हेन देयर इज लीकी गट, सो ये विलाइज जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल डैमेज हो जाते हैं और ये विलाइज के बीच में गैप आ जाता है. सो ये जो फूड पार्टिकल्स है जिनका डाइजेशन यहाँ पे होना है ये बिना डाइजेस्ट हुए ही बाहर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं. सो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स गोज आउट इन द ब्लड स्ट्रीम. इस कंडीशन को हम बोलते हैं लीकी गट. ओके, सो फाइबर विलाई को रिपेयर करने में और ये गैप को हील करने में फाइबर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दैट इज हाउ दे आर हेल्पफुल इन लीकी गट. Fiber के benefits we have talked about, functions we have talked about, you can just go through them. Fiber हम intake कर सकते हैं, हम good amount of fruits and vegetables add कर सकते हैं rather than making juice of them, having in raw form, having plain रोटी की जगह अगर हम multigrain रोटी लेते हैं या हम we add a lot of vegetables into that roti, then we have more of fiber rich foods like makhanas or popcorns instead of these processed shapes, or we have chia seeds, flax seeds. They are able to increase our fiber intake. Coming on to water intake, water again is very very important component. मेल की बॉडी में as we discuss the composition, water content ज्यादा होता है, फीमेल्स की बॉडी में water content कम होता है, but water is the main constituent of our body. Water is chemical formula is H2O. Two molecules of hydrogen combined with the molecule of oxygen and water molecule बनता है. It has no color, odor, smell, but इसमें कुछ minerals होते हैं, calcium, magnesium, sodium, iron जैसे, depending upon water source कौन सा है. There is two types of water, hard water जिसमें कुछ certain calcium salts होते हैं, and hard water कैसे हम पहचान पाते हैं, it does not make leather. When we try to make leather with soap, वो foam नहीं बनाता है. Soft water easily foam बना लेता है and it has good amount of minerals also. Okay, so water की requirement vary करती है person की age, weight, lifestyle और climatic conditions पे. It also varies depending upon if a person is staying in very hot condition or cold condition, if a person is extensively active doing physical activity, or if the person is sedentary. उसके basis पे water requirement up and low होती है. जब बहुत गर्मी होती है blood vessels expand होते हैं, blood flow increase होता है जिसकी वजह से heat loss होता है, और जब बहुत ठंड होती है blood vessels narrow हो जाते हैं जिसकी वजह से heat loss नहीं होती. So this is how water requirement increases and decreases in hot and cold climate respectively. So roughly for every 1000 calorie diet we need around 1 liter of water. Specific water calculations कैसे करनी है I will be guiding you on that. Okay, so now हमारी diet में different ways में water आता है. First is the water that we drink. Second is metabolic water. जब carbohydrates, fats, proteins हमारी body में metabolize होते हैं, along with energy, along with ATP molecules or pyruvate molecules, they give us water also as an end product along with oxygen. ठीक है,
So the end product of carbohydrate, proteins and fat metabolization is water. So this is the source of water, in one of the source of water in our diet. The third source of water in our diet is foods that have natural more water content, जैसे cucumber, watermelon, oranges, spinach, papaya. इनमें water naturally अगर आप देखो 96 to 80% water होता है. So when we eat such foods, naturally our body gets good amount of water. So water is very, very important to maintain the body temperature. It acts as a medium in which the substances are transported to different parts of the body. ये excretion में help करता है in the form of urine. ये urine का main component होता है. And जो हमारे internal tissues होते हैं, water उनको shock और injury से भी prevent करता है. And water intake constipation में भी help करता है. Purifying water is important. Initial days में वाटर को ग्लास बॉटल्स में डाल के सन में रख दिया जाता था. 99% वो लोग वाटर प्यूरिफाई हो जाता था पैथोजन से. So now the ROs or the water purifiers are used. The TDS should be between 50 to 150 ppm. अगर TDS 1000 ppm से ज्यादा है, then the water is unsafe for consumption. So the most prominent question or the most asked question is, क्या water meals के साथ लेना चाहिए? So the answer is no. Water should not be taken with meals. There are two reasons for that. One is when we are eating food, the moment we put food in our mouth, हमारी बॉडी में बहुत सारे एसिड्स रिलीज होते हैं स्टमक में, और ये एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए. नाउ इफ वी आर एडिंग वाटर along with meal, तो ये एसिडिटी जो है ये डाइल्यूट हो जाती है, और वो एक pH एसिडिटी 2 से 4 की चाहिए होती है. जब हम वाटर डालेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, वो एसिडिटी कम हो जाएगी. सो जिस लेवल की एसिडिटी चाहिए होती है फूड ब्रेक करने के लिए, वो नहीं हो पाती, तो फूड में डाइजेशन इश्यूज होते हैं. सेकेंड रीजन इज आयुर्वेद में बोला जाता है जब हम खाना खाते हैं तो हमारी स्टमक इज लाइक जठर अग्नि, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट रिक्वायर्ड है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, बट जब हम पानी डालते हैं वो जठर अग्नि बैठ जाती है. दिस इज द आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी दैट सबसाइड्स एंड द फूड इज नॉट एबल टू गेट डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली. ओके, सो वी हैव गट इश्यूज. There is always a balance that is achieved between the daily water intake and the daily water output. अगर आप वाटर इंटेक कर रहे हो अराउंड 1500 to 1750, आप यूरिन की फॉर्म में 1200 to 1500 एक्सक्रीट भी करोगे. Then some water is excreted in the processes of perspiration and respiration also. Some water is added जो हमारे solid foods में होता है और metabolic water की फॉर्म में ऐड होता है, and पीसेस के थ्रू लूज भी होता है. So if you just see the total intake and output remains the same. Now there is one concept of dehydration and excess water. दोनों ही conditions ठीक नहीं है, दोनों ही conditions are detrimental to the body. Dehydration अगर होता है तो symptoms like thirst, weakness, dryness of skin बहुत ज्यादा evident होते हैं, and excess water में भी कोमा, वॉमिटिंग, कंफ्यूजन जैसी स्टेट रहती है. सो डिहाइड्रेशन अगर है, वी कैन इजीली चेक विद द कलर ऑफ द यूरिन. द लाइटर द करंट, द बेटर इज द हाइड्रेशन लेवल ऑफ द बॉडी. द डार्कर द करंट, कलर ऑफ द यूरिन, व्हिच मींस बॉडी इज डिहाइड्रेटेड. एंड एक्सेस वाटर में किडनीज पे लोड पड़ता है, व्हिच इज नॉट गुड. सो देयर आर सर्टेन वेज दैट वी शुड बी टेकिंग केयर व्हेन वी ड्रिंक वाटर. हमें हमेशा पानी सिटिंग पोजीशन में पीना चाहिए, नॉट इन द स्टैंडिंग पोजीशन, बिकॉज अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन में लेते हैं, इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द फ्लूइड बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, एंड ये हमारे जॉइंट्स को भी अफेक्ट करता है. ऑल्सो इफ वी सिट एंड ड्रिंक वाटर, हमारा किडनी बैलेंस मेंटेन रहता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस अच्छे से कैरी होते हैं. हमें एक ही बार में बहुत ज्यादा वाटर गल्प इन नहीं करना है. वी शुड ऑलवेज टेक सिप्स ऑफ वाटर. बट इनिशियली अगर कोई बहुत कम वाटर रिक्वायरमेंट ले रहा है और हमें उनकी वाटर रिक्वायरमेंट इंक्रीज करनी है, उनका वाटर इंटेक इंक्रीज करना है, सो ऑब्वियसली इनिशियली कॉन्शियसली उनको वाटर लेना होगा.
but once after 2 or 3 weeks उनको habit हो जाएगी, then the body gives signals to drink water and then only the water should be taken. Always we have to take room temperature or warm water because वो हमारे channels को ज़्यादा अच्छे से cleanse करता है, detoxify करता है body को, rather than cold water. We should have water only when we are thirsty. We have talked about that. Tepid water is यानी जो herbal waters होते हैं या जो waters होते हैं जिनमें हम कुछ spices डालते हैं, जैसे जीरा पानी, अजवाइन पानी, cinnamon पानी, इस सब गोल के साथ पानी. So ये basically waters जो हैं इन्हें tepid water बोलते हैं. They improves the digestion, bloating and weight loss issues. Then first thing in the morning we should be drinking water. It is a very healthy habit, cleanses your intestine and removes toxins from the body. And पानी हमें silver and copper vessels में stored. Plain water should be drank from silver and copper vessels, specifically if we take early morning. Silver keeps our body cool and copper vessels have boosts our immunity. They have antiviral, antioxidant properties. ये cancer protective भी होते हैं. This was all about today's topic. We have some time left. I will answer your questions. Anita, please raise your hand. Thyroid and hormone imbalance, Anisha, we will be doing in detail when we will be touching the thyroid topic. Let's just stick to, it is a request, let's just stick to the current topic. आगे के टॉपिक्स जो है वो हम तभी कवर करेंगे जब हम क्लास में वो टॉपिक कवर कर लेंगे, लाइक वेट लॉस, वेट गेन, थायराइड, डायबिटीज, किडनी इश्यूज, लिवर इश्यूज, गट इश्यूज, वी आर ऑल गोइंग टू कवर इन द फ्यूचर क्लासेस. सो जो टॉपिक्स अभी हमारी सिर्फ 4th क्लास है आई थिंक, या so the topics we have not covered, I will not be able to answer those questions now. Okay, yes Graham, please ask your question. मैम Yes. एक्चुअली आप बताएं कि जो अपन जैसे फ्रूट्स लेते हैं तो फ्रूट्स के अंदर भी वाटर की क्वांटिटीज होती हैं काफी, और अपन नॉर्मल जो वाटर लेते हैं तो अपना अगर जैसे फ्रूट्स कंज्यूम कर रहे हैं ज्यादा और वाटर कम ले रहे हैं तो क्या वो वाटर की इनटेक को जो भी है हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा? नो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा फ्रूट्स ले नहीं सकते. जब हम डाइट प्लानिंग करेंगे वी अंडरस्टैंड दिस थिंग. सेकेंडली, fruits have limited water. They can never replace 2 or 3 liters of water requirement of an individual. They may just give, अगर आप देखेंगे metabolic या foods coming from water, it is just 500 to 600 ml. Because एक limit से ज्यादा हम fruits नहीं ले सकते. Everything is good, but we need to stick to the limits. Like proteins अच्छे हैं, but हम overdo करते हैं तो उसके negative impacts होते हैं. So likewise, fruits भी अगर हम overdo करते हैं उनके negative impacts होते हैं. So when I will be teaching you, the exchange planning, the diet planning. So we do not take, because fruits are rich in carbohydrates also. और हमारे limited carbohydrates हमें दिन में लेने हैं. But we need proteins also, and fruits are not the good source of proteins and fats. So एक balanced diet के लिए हम limited servings लेंगे, and those limited servings will not be able to meet our water requirements. Okay, and my second question is, ma'am, please give light on the Kangen water. I mean the alkaline water. इसके ऊपर आप क्या बताएंगे? Alkaline water is a form of tepid water, so it is good for our body. So can we use the continuous alkaline water? जैसे like machines आती हैं अभी, जैसे Kangen water जो आ रहा है, तो वो क्या हमको इंस्टॉल करवाना चाहिए? क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है? Not really, because मुझे उनका pH का तो अभी नहीं पता है, because the machines are getting installed. अब ये money making है या genuinely है, but we can easily make our alkaline waters. You just take water and add a slice of cucumber in them and keep it for 4 to 6 hours. Your alkaline water is ready. Add a pinch of cinnamon powder or lemon to the water. Your alkaline water is ready. उससे हमें दूसरे benefits भी मिलते हैं, and the body becomes the water becomes also alkaline in nature. So ma'am, how much in amount we have to take this alkaline water?
1 any liter a day specific- can be taken along with the other water, the plain water. That is more than enough, no? Yeah, 1 liter should be good enough for adults. Okay, so it should be taken in early in the morning or anytime we can take. Throughout the day, yes, throughout the day, can be taken anytime. Okay. Yeah. Yes, Kayan, please ask your question. Hello, ma'am. My Hello. question is, should we drink the plain warm water in the morning, or we can take the zero water, cinnamon water in the morning, empty stomach? Both are good to go. Plain water से भी start कर सकते हैं, but अगर किसी को कोई gut issues होते हैं या किसी को अपना metabolism increase करना है, if there are any specific thing, then we can have these herb or spice infused water also. Even if somebody is healthy, then also we can have all these herb and spice water. It both ways are good. You start your day with warm water, or you start your day with this herb or spice infused water. Both are good, but it should be warm. Actually, I take almonds and walnuts also in the early morning. So should we drink water first, or we can do eat first and then drink water? First is water. First is water. Yeah. Okay, ma'am. Thank you. Yes, Chandra, please ask your question. Hello. Yes, Chandra, please ask. Good evening, ma'am. Please repeat how fiber works. आपका क्वेश्चन है हाउ फाइबर वर्क्स. Yes. So fiber basically works in the large intestine. उसका मेन रोल लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. फाइबर की फंक्शंस मैंने पूरा एक्सप्लेन की है. जैसे फाइबर हमें हमारे बॉडी में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, कोलेस्ट्रॉल और फैट को ट्रैप करता है. फाइबर सैटिस्फैक्टरी वैल्यू को लोअर डाउन करता है. सो बेसिकली फाइबर हैज a lot of functions and benefits. तो जो मैंने पूरे टॉपिक में ओवरऑल एक्सप्लेन किए हैं. अगर आपका स्पेसिफिक कोई डाइजेशन में क्वेश्चन है, यू कैन पुट, अदरवाइज यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग. Let me know if you have any specific question as in how fiber works, because the entire topic I can't repeat right now. Hello, Chandra, can you hear me? Chandra, please go through the topic and let me know if specific question is there. Yes, Abha, please ask your question. गुड इवनिंग मैम. Good evening. मैम, जैसा हम लोगों को पता है कि पानी नहीं पीना चाहिए खाने के साथ, ओके, लेकिन बटर मिल्क इज अलाउड. लेकिन मेरा क्वेश्चन मैम, बटर मिल्क में भी लार्ज अमाउंट में वाटर होता है, तो हाउ डज इट हेल्प इन डाइजेशन एंड वेट लॉस एंड ऑल दैट? बटर मिल्क इज नॉट अलाउड. कर्ड इज नॉट अलाउड. स्पेसिफिकली अगर कर्ड ठंडा है तो यूजुअली जो डाइट प्लान हम लोग आरोग्य में करते हैं, वी sometimes according to situation, if 99% I plan buttermilk after 1 hour of the meal. It is not to be taken with the meal. Okay. Nothing cold should be taken. But agar somebody is very thirsty, we can take just a small sip of warm water. We can take soups, because soups are warm, so we can take that. But thanda dahi, buttermilk not to be taken with the meal same time. एक्चुअली बहुत से डाइटिशियंस ये बात बोलते हैं मैम, है ना, इसीलिए मेरा क्वेश्चन था. ठीक है, आई टू एग्री विद इट. ओके, थैंक यू सो मच. Yes, Prabir, please ask your question. मैडम, जैसे आपने बताया इसबगोल का वाटर लेने से फाइबर अच्छा मिलता है, तो ये इसबगोल वाटर आफ्टर फूड या बिफोर फूड लेने से अच्छा होगा? हम ये कभी भी ले सकते हैं. बिफोर फूड भी ले सकते हैं, आफ्टर फूड भी ले सकते हैं. अच्छा, बेटर कौन सा ऑप्शन होगा मैडम? सी बेटर इज बिफोर फूड अगर वेट लॉस इशू करना है, एंड अगर हमारा पर्पस है जस्ट फाइबर ऐड करना बिकॉज ऑफ गट इश्यूज, देन आफ्टर फूड. डिपेंडिंग अपॉन द हेल्थ गोल, टाइमिंग इज सूटेबली डिसाइडेड. ओके मैडम, और एक क्वेश्चन था. जैसे अल्कलाइन वाटर जो होता है, अल्कलाइन वाटर तो दिन में कितना क्वांटिटी लेना चाहिए? 1 लीटर. 1 लीटर जी. अच्छा, ये तो फूड के टाइम में तो नहीं होगा? नहीं, फूड के साथ हमें पानी नहीं लेना है. नहीं लेना है. और
और एक मेरा इंटरेस्ट था क्वेश्चन में, जैसे आप बताया है स्टैंडिंग पानी नहीं लेना चाहिए जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब हम स्टैंडिंग रहते हैं या बैठ के रहते हैं, हमारा इंटेस्टाइन कमर से गले तक तो सीधा ही रहता है ना, जी। तो इसमें बैठने का और खड़ा रहने का डिफरेंस क्यों होता है? बेसिक है हमारे जॉइंट्स, नी जॉइंट्स। वन थिंग इज उस पे प्रेशर पड़ता है वाटर का, सेकंड इज इंटेस्टाइन पे फर्क नहीं पड़ता है। वाटर बेसिकली जो लिक्विड है हमारी बॉडी में, किडनीज फिल्टरेशन करती हैं। सो किडनीज का एक प्रॉपर बैलेंस रहता है अगर हम बैठ के पानी पीते हैं। a lot of फिजियोलॉजिकल साइंस इज देयर जो हम अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। किडनीज कैसे फंक्शन करती हैं, हमारी नर्व्स कैसे फंक्शन करती हैं, व्हाट आर द चैनल्स ऑफ द बॉडी, हम उस फिजियोलॉजी में डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ओके मैडम। एडवांस कोर्सेज में जाते हैं बट इस कोर्स में वी कांट गो। ओके, यस हेमा प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मैम जी। है कि कुछ लोगों को पानी पीने के बाद भी उनका वेट गेन होने लगता है, उनकी बॉडी फूलने लगती है, क्या रीजन है इसका? ऐसा नहीं होता है। इट इज देयर अंडरस्टैंडिंग कि पानी से हमारा वेट बढ़ रहा है। नो, इट इज नॉट पॉसिबल एंड इट इज नॉट राइट। देयर आर अदर रीजंस। उनको वाटर रिटेंशन इशू हो सकता है, ब्लोटिंग इशू हो सकता है, बट इट इज नॉट वाटर दैट विल इंक्रीज देयर वेट। और अगर मैम अगर कोई पानी 3-4 लीटर पीता हो फिर भी उसके बॉडी में स्वेलिंग हो रही हो बट उसकी स्किन एकदम डल और लूज हो, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं? उनकी किडनीज में प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी डाइट में सॉल्ट इनटेक ज्यादा हो सकता है, उनको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत हो सकती है। ओके, थैंक यू मैम। Most welcome. We need to wind up the class. I'll take last question of Vishal. Yes, Vishal, please ask your question. मैम मुझे ये पूछना था, जैसे मैम मुझे अभी बीच में कार्ब इंटॉलरेंस हो गई थी, मतलब अगर मैं कार्ब्स ज्यादा खा लेता था, जैसे सुबह दोपहर शाम को राइस या रोटी अमाउंट ज्यादा कर लेता था एंड सोने से पहले दूध भी पी लेता था, तो मैम मुझे थोड़ा डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती थी और सेकंड मेन ये था मैम मुझे ना नींद नहीं आ पाती थी, मतलब बहुत डिस्टर्बिंग स्लीप हो जाती थी मुझे अराउंड, मतलब मैं बीच में उठ जाता था रात को एंड मुझे एकदम से एंजाइटी टाइप होता था, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन टाइप होता था। और ऐसा कुछ था नहीं, बट हाँ मैंने एक्सपीरियंस किया था कि मैं जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले लेता था, अब इसी कंडीशन को देख के मैंने कीटो डाइट स्टार्ट करी थी, तो मैम उससे मुझे काफी रिलीफ मिला था। एंड एक बार जिम में मुझे एल्बो इंजरी भी हो गई थी, दोनों एल्बोज में, ड्यू टू मतलब रॉन्ग वर्कआउट कर रहा था मैं उस वजह से। तो उसके बाद तो मैं मेरी फॉर्म टेक्निक ट्रेनर है उन्होंने ठीक कराई थी, जिससे मुझे काफी फर्क पड़ा था। और दूसरा मैम मैंने ये भी नोटिस किया था, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट लेता हूँ तो मेरे जॉइंट्स में, एल्बो जॉइंट्स में, तो मैम उनमें प्रॉब्लम होती, उनमें थोड़ा पेन होता है पुशिंग मूवमेंट्स करते टाइम। एंड जब मैं कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल एलिमिनेट कर देता तो वो 80 to 90% खत्म हो जाता है। तो मैम ये पूछना चाह रहा था मैं कि ये कार्ब इंटॉलरेंस है या क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि विशाल अभी आपको टेम्पररी रिलीफ मिल रहा होगा बट ये सस्टेनेबल नहीं होगा। You need to check, there is some specific intolerance probably. आपको ग्लूटेन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है, बट गोइंग ऑन अ कीटो डाइट इज अ टेम्पररी रिलीफ। अगर आप इसको कंटिन्यू कर लोगे 2 साल, आपको कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड इश्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सो कीटो डाइट मैम इज कोलेस्ट्रॉल का इशू मुझे लग रहा है, मैंने ब्लड टेस्ट कराया था अभी, तो मैम आफ्टर फॉलोइंग, क्योंकि मैं अभी इतना ज्यादा वेट नहीं है मेरा, अराउंड 64-65 है, तो मैम इसके बावजूद भी मैंने कीटो डाइट फॉलो करी थी अराउंड 15 से 20 दिन, इसी जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ही। तो मैम उसके बाद मैंने ब्लड टेस्ट कराया तो मेरा कोलेस्ट्रॉल था वो अप आ रहा था उसमें। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। कीटो डाइट से था। कीटो डाइट इज फुल ऑफ फैट्स, यू नो, एंड हम एक लिमिट के आगे फैट्स नहीं ले सकते। वी विल बी डूइंग द डाइट प्लानिंग एज वी प्रोसीड विद द कोर्स। सो विशाल, यू नीड टू चेक व्हाई यू हैव कार्ब इंटॉलरेंस। कार्ब इंटॉलरेंस सब टाइप ऑफ कार्ब से नहीं होगी, देयर विल बी सम स्पेसिफिक थिंग जिसकी वजह से आपको इश्यूज हो रहे होंगे। यू नीड टू फाइंड आउट दैट। कीटो डाइट इज नॉट अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। ओके, और मैम ये जॉइंट में जो थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन होती है आफ्टर मैं कार्ब This is खाता हूँ, because of तो ये भी मुझे acidic चेक करना pH. पड़ेगा?
This is mostly because of acidic pH. You may have gut issues. आपको अपनी gut health पे work करना है. आपको यस मैम, थोड़ा alkaline डाइजेशन में based. प्रॉब्लम है. Yeah. So all this that you're facing may be because of bad gut health. Don't go on keto. वो worsen करेगी आपकी चीजों को. ओके ओके मैम. Okay. All right. So we end up our class here for today, and I will see you all tomorrow. Rest of the questions we can discuss tomorrow in the initial part of the class or in the interactive. Thank you so much, and I will see you all tomorrow. We can now leave the meeting.